Well, you must have heard about operations in mathematics and the inverse of those operations. The four basic operations in mathematics are addition, subtraction, multiplication and division. We know that addition is inverse process of subtraction. If you are given any number, suppose x, and if you add 5 to it, if you want to get x back, then what you will do? You will apply the inverse process, you will apply the inverse operation. We have subtracted 5, the inverse of added 5, the inverse of adding is subtracting, and obviously you are going to get x. That is what we should do to a function, to an operator, to an operation to get the input back. That is inverting a function. See, every relation is invertible, even every function is can be inverted. But what we mean by an invertible function, that is, if you invert the function, you are going to get a function. That is an invertible function. See, if you are given any relation, that is, if you are given any function, it can be inverted. But here we will be focusing on those functions which are invertible. Means if you invert the function, you are going to get a function again. I hope I am clear. If the function is not invertible, even if you can find its inverse relation, but that will not be a function. So we are trying to find the inverse of a function. That is the most important thing. So before proceeding, we must ensure that the given function is 1 1 on 2, that is, the function is invertible. So how to prove a function to be invertible and how the inverse is found? Let's take a simple example. If I am given the function in ordered pair, see here, if I am given a function f is equal to 1 comma a, 2 comma b, 3 comma c. Suppose this is a function, then without any doubt this function goes from the set 1, 2, 3 to a, b, c. Now its inverse function can be obtained simply by reversing the order of each ordered pair, that is a comma 1, b comma 2 and c comma 3. And this function f inverse goes from b to a, that is a, b, c, from this set a, b, c to the set 1 to 3. So you can understand in the inverse of the function, as in the relation, the domain becomes codomain and codomain becomes domain. So if the original function is defined from the set a to b, then its inverse is defined from the set b to a. Well, before finding the inverse, we must ensure that the function is invertible. Now, how to prove a function to be invertible? We have talked in the last session, every linear function is invertible. Let's have an example. If I take a linear function fx is equal to 3x plus 5 or anything in set of real numbers, suppose I have fx is equal to 3x plus 5. If I give input as 2, what I get? Let's see. 3 into 2 plus 5, that is 11. That means function of 2 is equal to 11. What should be done to 11 to get the input 2? That is our question, is how to invert it. What we have done? We added 5. Despite of added 5, we must subtract 5. So 11 minus 5. And we multiplied the original input by 3. So we'll divide it by 3. What we are going to get? F inverse of 11. F inverse of 11, that means this is going to be 11 minus 5 is 6 by 3 is equal to 2. So you can find the image of 2 was 11. So the pre-image of 11 is 2. This is how we can get the pre-image. तो क्या input दिया कि output आया. That is how it works. If I talk about this, its inverse is f inverse x is equal to x minus 5 by 3. No, minus 5 by 3. So we are going to talk about inversing an invertible function. But first of all, we will prove the function is invertible. CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है prove that the following function is bisective, hence does find the inverse of the function. 4 मार्क्स में जनरली बहुत बार क्वेश्चन आता है.
कभी कभी ये पूछता है चेक द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, मीन्स ये 1 1 है या नहीं. लेट्स टॉक अबाउट सम फंक्शंस व्हिच आर invertible and whose inverse can be found. Let's talk first of all, let's talk about a linear function defined in the set of real numbers, that is f(x)(f). The function f is defined from set of real numbers to set of real numbers such that fx is equal to 3x minus 4 or whatever, any linear ax plus b. Let's first talk about it, how to prove it 1 1 onto. So first is, the topic is injectivity. We have checked this function. This graph will obviously be this kind, and if we perform the horizontal line test, the horizontal line is not intersecting the curve more than one point at any instance, so it is a invertible function. We have discussed it in previous session. Right now we are trying to give the model solution to a question. So first of all, we'll talk the injectivity, or what we call 1 1, if it is 1 1 or not. Let's see how we do. ज्यादातर किताबों में 4 तरीके हैं, उसमें से एक तरीके को ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन चारों के चारों तरीके सही हैं. अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने लिखा x1 इज इक्वल टू x2 और बुक लिख रही है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है बुक वाला ठीक है. और जब हम लिख रहे हैं x1 इज इक्वल टू x2, उस वक्त बुक वाला लिख रहा है fx1 इज इक्वल टू fx2 और उससे x1, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. इसलिए हम चारों बातें समझ लें कि चारों बातें एक ही है. देखो कैसे, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है. अगर कोई सेम एलिमेंट लें, यहां x1 x2 है, x1 की इमेज है fx1 और x2 की इमेज है fx2. अब मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस. हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग है, यानी ये फंक्शन 1 1 है. अब इसके लिए 4 तरीके हैं. क्यों 4 है? सीधी सी बात है, मैं ये कहूं अगर कि मैंने अगर 2 एलिमेंट सेम लिए तो उनकी इमेज अलग अलग नहीं आएगी, सेम आएगी. मींस व्हाट आई स्टार्ट विद, इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन आई प्रूव दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. इफ आई अप्लाई सम स्टेप्स, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, x को 3 से मल्टीप्लाई करना, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना. अगर x1 x2 के इक्वल है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4. इसका मतलब है f ऑफ x1 दैट इज 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x2. यानी अगर x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, यानी कि कोई भी 2. इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू, सिंस x1 इज इक्वल टू x2 होने पर fx1 किसके इक्वल है, fx2. तो हम कह सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग, यानी कोई 2 एलिमेंट सेम लूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी इमेजेस अलग अलग है, वो भी सेम आए. अब इसी को दूसरे तरीके से लिखने का क्या होता है, कई लोग बोलते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2. अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो 3x1 3x2 के इक्वल नहीं होगा, 3x1 3x2 के इक्वल नहीं होगा तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी इक्वल नहीं होगा, यानी fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं होगा. यानी दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं ये कहूं x1 और x2 2 अलग अलग इनपुट लिए तो उनके आउटपुट भी अलग अलग आ रहे हैं, ये भी सेम बात है. कॉन्ट्रापोजिटिव जिसे बोलते हैं, ये भी सेम बात है. अभी आएगा fx2 माइनस ये, और ये नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी बात सेम है. मैं ये कह रहा हूं कि 2 एलिमेंट अलग अलग लिए जाएं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग आएगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 इनपुट तो अलग अलग लिए लेकिन इमेज सेम आ गई. हो क्या रहा है, अलग अलग इनपुट लेने पे अलग अलग इमेजेस आ रही हैं. इसका मतलब किन्हीं भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं आ रही, यानी ये 1 1 है. तीसरा तरीका ऐसे हो सकता था कि मैं अपनी तरफ से लेके चलता कि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के. और अब मैं प्रूव करना चाहता हूं fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो मैं ये प्रूव कर दूंगा अगर ये 2 कोई एलिमेंट ऐसे हैं कोडोमेन में जो सेम है तो उनकी इमेज भी हर हाल में सेम ही होनी चाहिए. तो ये कर सकते हैं. तो fx1 fx2 के बराबर है. अगर fx1 fx2 के बराबर है तो डेफिनेशन fx की है 3x माइनस 4, तो 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4. दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2.
3 से डिवाइड कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी fx1 fx2 के इक्वल होने से ये मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2, यानी दो कोई एलिमेंट को डोमेन में सेम है तो उनकी इमेज भी सेम ही है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एलिमेंट तो सेम था, एक ही था, लेकिन उसकी दो प्री इमेज, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर सेम नंबर है तो उसकी प्री इमेज भी सेम है। अब इसी को ऐसे करें, अगर fx1 fx2 के इक्वल नहीं है तो 3x1 इसके इक्वल नहीं है, अगर 3x1 माइनस 4 आपस में इक्वल नहीं है तो 4 ऐड करने पे भी इक्वल नहीं आएगा, यानी x1 भी x2 के इक्वल नहीं आएगा। तो चौथा तरीका ये हुआ, तो मैं ये लूं कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, और इससे ये पता लग रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी यहां दो fx1 और fx2 अलग अलग है, तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं है, यानी वो भी अलग अलग है। तो हर बात में बार बार लास्ट में कंक्लूजन ये आ रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, दैट इज हाउ वी डू। अब इन चार तरीकों में से बुक वाला, जब आप ये लिख रहे होंगे हो सकता है बुक में ये लिखा हो, जब आप ये लिख रहे हो तो बुक वाला ये लिख रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि बुक वाला गलत लिख, क्योंकि इक्वल की जगह नॉट इक्वल लगा के दिख रहे हैं सेम चीज, तो भी वो प्रूफ वही है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, अरे हम तो इक्वल लगा रहे हैं लेकिन बुक में नॉट इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब हम गलत है या बुक गलत है। ना तो आप गलत है, ना ही बुक में दिया गया सॉल्यूशन गलत है। इस चीज को समझो, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो मैं इसको चार तरीके से कर सकता हूं, यहां दो अलग सेम एलिमेंट लिए तो उसकी इमेज भी सेम ही आई, मतलब दो सेम एलिमेंट की इमेज अलग अलग नहीं आ रही, इमेज एक ही आ रही है। दूसरा तरीका ये, मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए तो मैंने ये प्रूव किया कि उनकी इमेज भी अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां मैंने अलग अलग एलिमेंट लिए 2 and -2 और उनकी इमेज सेम आ गई, नहीं, मैं कह रहा हूं जब ये नॉट इक्वल है तो उनका फंक्शन की वैल्यू भी नॉट इक्वल है, यानी अलग अलग की प्री इमेज, अलग अलग की इमेज अलग अलग है। सेम इधर से, कि अगर मैं इधर दो कोई एलिमेंट लूं और ऐसे लूं को एलिमेंट सेम है, सेम एक के ऊपर है, तो उसकी प्री इमेज भी वापस सेम ही आएगी, और दो अलग अलग लूंगा तो उसकी प्री इमेजेस भी अलग अलग आएगी। इस चार तरीकों से प्रूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक सबसे इजी पड़ता है हमारे लिए लिखने में, ये हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं। लेट x1 and x2 आर द एलिमेंट्स इन डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। हम ये मान के चल रहे हैं अगर x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे हैं कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो हमें ये प्रूव कर देना कि x1 भी x2 के इक्वल है। उससे ये प्रूव हो गया कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है। ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं, आप इसका उल्टा ये लेकर ये प्रूव कर सकते थे। चारों तरीके इक्वली वैलिड हैं, इसलिए बिल्कुल घबराए बिना आप जब कोई भी सॉल्यूशन पढ़ें इन चार में से कोई एक फॉलो किया गया हो, एंड मोस्ट ऑफ द बुक विल फॉलो दिस। कई लोग ये भी फॉलो करते हैं x1 को x2 के इक्वल लेके, जैसे ये प्रूव कर, मान लिया मुझे ये प्रूव करना है कि x 3x प्लस 5 ये 1 1 है, कोई भी लीनियर, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से पहले x लूंगा, x1 इज इक्वल टू x2। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब क्या करेंगे, 5 ऐड, तो 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 5। तो इससे क्या हुआ, fx1 किसके इक्वल आ गया, fx2। आप इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से, ये दोनों तरीके इक्वली वैलिड है। ये आसान पड़ता है, इसमें सीधे सीधे स्टेप कम होते जाते हैं। हमने लिया fx1 इज इक्वल टू fx2, उससे फायदा क्या हुआ, हमें x1 इज इक्वल टू x2 लाना है। तो अभी हमारे पास है 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4। अब आसान कितना है, ये दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, हमें तो x1 को x2 के इक्वल प्रूव करना है, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 इज इक्वल टू x2, यानी fx1 के fx2 के इक्वल होने पे x1 x2 के इक्वल है, इसका मतलब ये 1 1 है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक लीनियर, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें x क्यूब प्लस कांस्टेंट है, और एक ऐसा क्वेश्चन जो दो लीनियर फंक्शंस का रेशो है। दो लीनियर फंक्शन का रेशो भी हमेशा 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 इन्वर्टिबल होता है, प्रोवाइडेड दैट के डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो हम बात करेंगे इन फंक्शंस की। तो सो हियर वी हैव 3 क्वेश्चंस, वन अ लीनियर फंक्शन, अनदर वन क्यूबिक with a constant, and this one is the ratio of two linear. First of all, we will try to prove all these three 1 1, then we will prove it them onto, since they are 1 1 onto, so they are invertible, then we will find the inverse of the functions. The solution will be given in the description box, so you need not to note anything, you just try to understand what is the process. So what we do for 1 1, let x1 and x2 is element of domain such that x1 is equal to x2. If these are equal, then the function is going to be same. This is the process. Let's talk about it. If fx1 is equal to fx2,
what it gives? If I replace x by x1, I get fx1, that is 2x1 minus 1 upon 3 is equal to 2x2 minus 1 upon 3. Multiply both the sides by 3, that is cancel 3, you get 2x1 minus 1 is equal to 2x1 minus 1. Adding 1 to both sides, we get 2x1, sorry, it is x2, is equal to 2x2. That will give me x1 is equal to x2. So since fx1 is equal to x2 gives me x1 is equal to x2, hence distinct elements in domain has distinct image. सेम लेने पे सेम आ रही है, इसका मतलब किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट की सेम नहीं आ रही, मतलब अलग अलग की इमेज अलग अलग है. स्टेटमेंट यही दिया जाता है. आप नॉट इक्वल लेके चल सकते थे, तो हम कहते हैं fx1 अगर fx2 के इक्वल नहीं है तो x1 भी x2 के इक्वल नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस. ये आप इधर से इधर जा सकते थे, x1 x2 के इक्वल नहीं लेते, 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 सब्ट्रैक्ट करते, 3 से डिवाइड करते, fx1 इक्वल. तो ये चारों तरीके वैलिड है, हम कोई भी अपनाते. ज्यादातर लोग fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं. बात करते हैं इसकी. यहां पर आपका fx1 इज इक्वल टू fx2 होने का मतलब हो जाएगा 4x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू, अब x2 पुट करते हैं तो 4x2 क्यूब प्लस 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 4x2 क्यूब, यानी कि x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब. ध्यान दीजिए, अगर दो रियल नंबर है उनका क्यूब अगर सेम है तो वो नंबर भी सेम होंगे. x1 इज इक्वल टू x2. इसका मतलब fx1 fx2 के जब भी इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल है. इसका मतलब डिस्टिंक्ट इमेज एलिमेंट्स की इमेज डोमेन में अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी, सेम होने पे सेम होगी. इसका मतलब ये इंजेक्टिव है. फिर बात करते हैं इसकी. यहां पर हम लेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये क्या देगा 4x1 माइनस 1 अपॉन 6x1 माइनस 4. fx2 क्या आएगा, 2 पुट करते हैं, 4x2 माइनस 1 अपॉन 6x2 माइनस 4. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अल्टीमेटली हमें लाना x1 इज इक्वल टू x2 और वो अपने आप आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6x2 माइनस 4, 6x2 माइनस 4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट इज 4x2 माइनस 1 multiplied by 6x1 minus 4. Let's try to find it. 4 6 are 24 x1 x2, 4x1 multiplied by minus 16x1 minus 6x2 plus 4 is equal to, here we will get 24 x1 x2 minus 16x2 minus 6x1 plus 4. Now this 24 x1 x2 is cancelled with 24 x1 x2 plus 4 is cancelled with plus 4. Now if you minus 16 x1 minus 6 x2 is equal to minus 16 x2 minus 6 x1. All the x1 is transposed to left hand side, so this will give minus 16 x1 plus 6 x1 is equal to minus 16 x2 plus 6x2. That will simply give me 10x1 is equal to minus 10x2. Minus 10 is cancelled out, so x1 is equal to x2. So whatever question you take, यहाँ 4 की जगह 6 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी चेंज करो, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2/3 पे डिनोमिनेटर 0 होगा, वहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसकी इमेज ही नहीं होगी 2/3 की. तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लें, हमेशा क्या आ रहा है हमारा, ये फंक्शन 1 ये प्रूव करने का इसका तरीका. अब हम बात करेंगे ऑन टू. ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं? ऑन टू प्रूव करने का मतलब है जिसे हम बोलते हैं सर्जेक्टिविटी. सर्जेक्टिविटी या ऑन टू. सर्जेक्टिविटी में हम पहले समझ लें कि क्या प्रूव करना होता है. सर्जेक्टिविटी में हमें प्रूव ये करना है कि अगर कोई भी एलिमेंट को डोमेन में है तो उसकी कम से कम एक प्री इमेज जरूर होगी. यानी हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी से कनेक्टेड ना हो, यानी पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज के इक्वल है, यानी वो फंक्शन ऑन टू है, सर्जेक्टिव है. तो सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं इन द सेट कोडोमेन. कैसे? यहां पर कोई y लिया और मैं प्रूव करना चाहता हूं कोई ना कोई x यहां जरूर ऐसा है कि fx किसके इक्वल है, y के, यानी कोई भी y खाली नहीं है. तो हम क्या करते हैं सर्जेक्टिविटी में, लेट y इज एनी आर्बिट्रेरी, अब y की जगह कोई भी लिया हमने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन.
y हमने किस में लिया, कोडोमेन में। इफ पॉसिबल, हम पहले से गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम पहले से नहीं कह रहे हैं कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x है। अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, लेट x इज द प्री इमेज ऑफ y, x इज द प्री इमेज ऑफ y, देन x अगर प्री इमेज है, मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो fx, अगर x प्री इमेज है y की, तो फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होगा, y के। ओके, फंक्शन ऑफ x की जगह लिखा 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y। यहां पर y x की टर्म्स में, हमने x को y की टर्म में निकाल देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, 1 ऐड कर दिया, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 1, और x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई भी y कोडोमेन में है तो x इज इक्वल टू, ये जरूर जो भी x की वैल्यू आई, ये किस में आएगी, डोमेन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखना है, फॉर एवरी y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इस बात को समझिए कि ये क्या लिखा जाता है, ये प्रूफ कैसे हुआ। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई y है तो उसके लिए कम से कम, माना कोई x है तो इसकी प्री इमेज है, अब पता लगाया वो x कैसा होगा, इसको सॉल्व करके वो x कैसा होगा। अब देखो y रियल नंबर है, y कैसा है, रियल नंबर, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रियल आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे वो भी रियल आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे वो भी रियल आएगा। यानी y आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी क्यों ना लो, y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कुछ भी वैल्यू लो, y की जगह 5 लोगे तो 5 3 15 प्लस 1 16/2 8 आ गया रियल नंबर। y की जगह 555 लोगे तो भी कोई ना कोई नंबर आएगा। y की जगह कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसा भी रियल नंबर लो, उसके लिए कोई ना कोई x ऐसा जरूर है जिसकी वैल्यू है 3y प्लस 1/2, वो डोमेन में जरूर मिलेगा। यानी कोई भी y खाली नहीं रहेगा। हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यहां पर हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। क्योंकि हर y के लिए जो ये x की वैल्यू आई वो डोमेन में है, हर एक y के लिए जो ये x की वैल्यू आई, हर एक y के लिए जो x की वैल्यू आई वो डोमेन में है, हर एक y के लिए जो x की वैल्यू आई वो डोमेन में है। इसका मतलब हर एक की प्री इमेज है। Hence every element of codomain has its pre-image in domain, so f is onto, या जिसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं सर्जेक्टिव। सब में सिस्टम वही है, fx इज इक्वल टू y लेना, यहां से x आएगा। ये लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो x आया है, हमने y कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, लेकिन जो भी x आया वो जरूर डोमेन में, यानी कोई भी y उठाओ उसके लिए यहाँ x पड़ा है, यानी हर एक की प्री इमेज है, यानी कोई भी खाली नहीं रहा। ये इसका लिखने का तरीका है। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, अब मान लिया हमने ये क्वेश्चन लिया, यहां भी वही कहानी, क्या करेंगे, लेट y इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इफ पॉसिबल। हमें पहले से नहीं डिसाइड कर लेना कि है ही, अगर पॉसिबल हो, माना उसकी प्री इमेज x है, इसका मतलब fx किसके इक्वल है, y के, यानी कि fx की वैल्यू डाली यहां से, क्या आएगी, 4x³ प्लस 7 इज इक्वल टू y, यानी 4x³ इज इक्वल टू y माइनस 7, यानी x³ इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, means x is equal to y minus 7/4 cube root of this, का क्यूब रूट 1/3 पावर लेंगे ये, विच इज एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लिखना, ये जो भी आया वो डोमेन में है। फॉर एवरी y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी है, कोडोमेन। क्या हुआ, y कोई भी नंबर क्यों ना ले, अगर उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रियल नंबर है y कैसा है, रियल नंबर है, अगर उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे रियल ही आएगा, उसको 4 से डिवाइड करोगे रियल ही आएगा, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आएगा रियल ही नंबर। अब उस रियल नंबर का क्यूब रूट लो, हर एक रियल नंबर का एक यूनिक क्यूब रूट होता है, यूनिक रियल क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट आते हैं जिसमें से एक रियल होता है और 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हर एक के लिए कोई ना कोई है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं हर एक के लिए कम से कम एक प्री इमेज जरूर है, इसलिए कैसा हो गया, ऑन टू। तो लिखने का प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा, fx को y के इक्वल लेना, यहां से x की वैल्यू निकाल देना। सेम केस यहां, अगर इसको मुझे ऑन टू प्रूव करना है, वही का वो गाना गाना है, क्या लिखेंगे इधर, ये पिक्चर दिमाग में रखनी, माना यहाँ y, लेट y इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट इन कोडोमेन इफ पॉसिबल लेट x इज इट्स प्री इमेज।
देन व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वी आर टू प्रूव ये x जरूर जरूर डोमेन के अंदर है। हर एक y के लिए कोई ना कोई x है, मतलब कोई भी y खाली नहीं, मतलब वो ऑन टू। देखते हैं इसके लिए वही हम लेंगे सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx इज इक्वल टू y मतलब 4x माइनस 1 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू y। हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y। अब हमने सारा x एक साइड किया, हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x को इधर ले लिया, तो 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू 1 माइनस 4y, 1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, x कॉमन ले लिया, दैट विल गिव मी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 4y। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 4, सॉरी x हमने कॉमन लिया, दिस इज 2x कॉमन ले सकते थे, 2x, तो ये दिस विल गिव मी 2 माइनस 3y। तो अब यहां से x आएगा 1 माइनस 4y अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3y। ऑलराइट, 6x को इधर ट्रांसपोज किया, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, 2x कॉमन लिया तो 2 माइनस 3y 1 माइनस 4y, ये आ गया। विच इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, हर एक x आ रहा डोमेन, फॉर एवरी y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आप कोई भी नंबर चूज करें यहाँ डोमेन में से, डोमेन है r माइनस 2/3 मत लेना बस, क्यों 2/3 लेने पे डिनोमिनेटर यहाँ 0 आ रहा है, वो डिफाइंड नहीं था, और वापस ये नंबर भी 2/3 नहीं आया क्योंकि 2/3 लेने पे यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर ले लें, x की कोई भी वैल्यू पुट करें उसके लिए कोई ना कोई y की कोई भी वैल्यू पुट करें उसके लिए कोई ना कोई x जरूर है, हर एक y के लिए कोई x है, इसका मतलब hence every element of codomain has its pre-image in domain, so it is onto। अब ये 1 1 प्रूव हो गया, onto भी प्रूव हो गया। 1 1 onto प्रूव होते ही हम लिखते हैं hence the given function, since the function is 1 1 and onto, so the given function is invertible, यानी वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। since the given function is injective and surjective, so it is a bijective function, यानी ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन है, अब इनवर्स निकालने का तरीका सब में मैथमेटिकली एक ही रहेगा, हम लिखेंगे अब इनवर्स सबसे पहले, अगर ये a से b में डिफाइंड है तो इसका इनवर्स कौन सा सेट से कौन से सेट में होगा, b सेट से a सेट में। लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ ऑल दीज थ्री फंक्शंस दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। चलें इसका इनवर्स निकालना है, तो अब माना लेट f इनवर्स हमें लेना है, f इनवर्स कहां से कहां होगा, b टू a, समझ रहे हैं, यानी इस r से इस r में, या तो r से r है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, r टू r। लेट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। f इनवर्स x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहां से दोनों टाइप का f लेंगे तो दिस विल गिव यू f, एंटी ऑपरेशन करने पे x विल बी इक्वल टू fy। अब fy की वैल्यू पुट करो y के टर्म में, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन 3। यहां अभी है x इन टर्म्स ऑफ y, हम करेंगे y को इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 में भी y की वैल्यू पड़ी और वहां से भी y की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 1 को इधर कर दिया, तो यहां से आया y इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों ही y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू इतनी है और यहां से y की वैल्यू इतनी है, दोनों की y की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो f इनवर्स x किसके इक्वल हुआ, 3x प्लस 1 अपॉन 2, और f इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर में। दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले 1 1 प्रूव करना, 1 1 प्रूव के लिए एक ही गाना है, fx1 इज इक्वल टू fx2, करते करते x1 इज इक्वल टू x2। ऑन टू के लिए क्या करना है, वही, माना कोई y है, लेट y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इफ पॉसिबल लेट x इज इट्स प्री इमेज। तो फाइनली हमें ये पता लगा x भी किस में आ रहा है, डोमेन में आ रहा है, हर एक y के लिए डोमेन में कोई ना कोई x पड़ा है, इसका मतलब वो ऑन टू है। 1 1 ऑन टू प्रूव करते हैं क्योंकि वो सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल। ये लिखने के बाद नाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब किसी का भी इनवर्स, इसका इनवर्स निकालते हैं, वही कहानी होगी, लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू y,
दैट मीन्स x इज इक्वल टू एफ वाई। होगा क्या, यहां से एफ वाई कितना लिखेंगे, y x की जगह y लिख दो तो 4y क्यूब प्लस 7, यहां से हम लिखेंगे 4y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 7, 4 से डिवाइड कर दिया, y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई 4 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों y की वैल्यू दे रहे हैं तो दोनों इक्वल हो गए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, x माइनस 7 बाई 4 की पावर 1/3। यहां पे बात करते हैं, यहां पे भी वही fx को किसके इक्वल लेंगे, fx इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1 fx की जगह f इनवर्स x इज इक्वल टू y, f इनवर्स x किसके इक्वल है, y के, तो x इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। एफ वाई की जगह क्या लिखा, 4y माइनस 1 अपॉन 6y माइनस 4, यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो इसको किया 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 1, y सारा एक तरफ ले आए तो 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, y कॉमन लिया 6x माइनस 4 is equal to 4x minus 1, so y is equal to 6x minus 4 upon 4, y is equal to 4x minus 1 upon 6x minus 4। क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी y है और ये भी y है। फ्रॉम 1 and 2 f इनवर्स x is equal to 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, और f इनवर्स कहां से कहां होगा, इस सेट से इस सेट यानी b सेट से a सेट में, अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं इस तरह से। सो दिस इज हाउ वी डू। कैसे इनवर्स निकालेंगे, सबसे पहले 1 1 प्रूव किया, 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल लेंगे और x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। फिर क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, माना y कहां है, कोडोमेन में, अगर पॉसिबल हो तो उसके लिए कोई प्री इमेज डोमेन में x है तो हम पता लगाएंगे वो x उसी सेट में है कि नहीं डोमेन में, फाइनली पता लगेगा हर एक y के लिए कोई ना कोई x डोमेन में है, इसका मतलब ऑन टू। 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए f इनवर्स x को y के इक्वल लेना है, y इज इक्वल टू fx, इसको सॉल्व करके पता लगा, दोनों से हमने y की वैल्यू निकाली, दोनों से y की जैसी वैल्यू निकाली हमें क्या मिल गया, f इनवर्स x। अब एक जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे सिंपलेस्ट, fx इज इक्वल टू 1/x, पूरा सॉल्यूशन अगर उसकी बात करें, fx क्या है, इज इक्वल टू 1/x, और ये नॉन जीरो रियल नंबर्स में है, यानी इसमें जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना, उसके अलावा सब जगह ये डिफाइंड है, हर एक का रेसिप्रोकल पॉसिबल है। अब बात करते हैं 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है सच दैट के fx1 किसके इक्वल है, fx2 के, यानी 1 अपॉन x1 किसके इक्वल है, 1 अपॉन x2, यानी x1 किसके इक्वल आ गया, x2। fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये 1 1 है। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, माना y कोई भी एलिमेंट है, कहां पर, कोडोमेन, पूरी वही लैंग्वेज, लेट y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इफ पॉसिबल लेट x इज इट्स प्री इमेज, देन fx इज इक्वल टू क्या होना, भाई ये y, यहाँ y है, इसकी प्री इमेज x है, तो fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y, fx मतलब 1/x, 1/x इज इक्वल टू y, हम चाहते हैं कि हर एक y के लिए जो x निकाले वो रियल है, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y, जो कि रियल है, जो कि कैसा है, नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी एलिमेंट ऑफ, सीधा लिख देंगे डोमेन, फॉर एवरी y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में उसका प्री इमेज डोमेन में है, इसका मतलब ये ऑन टू है। अब सिंस द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, माना इसका इनवर्स f इनवर्स x है, तो अब f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू y, f इनवर्स x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1, यानी x इज इक्वल टू fy। अब fy की जगह क्या पुट करेंगे, 1/y, तो x इज इक्वल टू 1/y, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 1/x फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 y ये भी है, y ये भी है, तो f इनवर्स x क्या आ गया, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x। आई होप हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे कौन से नॉन इन्वर्टिबल है, इसमें डिस्कस किए कौन से इन्वर्टिबल है, और इसे इन्वर्टिबल लिखने के लिए कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन ट्राई करें। आई एम श्योर कि आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।